टीचर्स वी आर मिसिंग समथिंग, राइट? बच्चों के साथ होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। बच्चे टीचर बनते हैं, उनको कुछ एक दिन हमें प्रिंसिपल बनने का मौका मिलता है, हम स्टाफ रूम में बैठते हैं, बच्चों को जाके करेक्ट करते हैं, ऐसे ही पढ़ाना है। तो उस दिन हम मास्टर ट्रेनर्स की तरह वर्क करते हैं, तो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आपको सबको 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा सभी टीचर्स को। आई होप आपने सर्कुलर पढ़ा होगा। तो 1 बाय 1 आपको बुलाया जाएगा। दिवस के अवसर पर एक स्वागत की प्रस्तुत करेगा, तो आप सभी की आज्ञा चाहता हूँ। गूंज उठे मन की वीणा में अभिनंदन के तार, गूंज उठे मन की वीणा में अभिनंदन के तार। हे श्रद्धा के पात्र आपका, हे श्रद्धा के पात्र आपका, स्वागत बारंबार। गूंज उठे मन की वीणा में अभिनंदन के तार। धन्य भाग्य है आज आपने जो अवसर श्रीमान दिया, दर्शन देकर हम सबको जो प्रेम और सम्मान दिया। धन्य भाग्य है आज आपने जो अवसर श्रीमान दिया, दर्शन देकर हम सबको जो प्रेम और सम्मान दिया। अभिनंदन है चिरवंदन है, अभिनंदन है चिरवंदन है, चिर स्वागत सत्कार। हे श्रद्धा के पात्र आपका, हे श्रद्धा के पात्र आपका, स्वागत बारंबार। गूंज उठे मन की वीणा में अभिनंदन के तार, अभिनंदन के तार, अभिनंदन के तार। धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Respected Principal, my beloved teachers and staff members of Kendriya Vidyalaya, a very happy Teachers' Day. I personally feel very much honored for giving me this opportunity to share a few ideas with you on this occasion. Exchange of ideas for innovation and improvement in the field of education will be a great tribute paid to Dr. Radhakrishnan. This day provides a platform for this very purpose. I am given to understand that mainly teachers will be participating in this virtual meet. Therefore, it will be proper to focus on the challenges faced by the teachers in the present circumstances. Traditionally, it was the Guru who was the only source of knowledge and hence the unquestioned moral keeper of the society. But the times have changed. Now, a lot of information is available around us. It may be books, TV, media, internet, mobile, and so on.
So the child or the student you face today is already flooded with lot of information, and unlike ancient times is more aware, more informed and more exposed. Sir and my dear teachers, so today once again wish you very happy Teachers Day. So I feel teacher profession is one of the profession. It is challenging than any other professions because we are dealing with living children, living things. So other like software engineer or banking or post office, any other professions you take, they will be with machines only. So we are working through living things. So every day it is one of the challenge. Even from the entire our starting day to till retirement, one day we will face one new challenges. So I feel our brain will be working like anything. It will be, our brain won't stop to think. Okay, after 30 years we feel okay, we are middle age, so we can do like stop like thinking. So it is not like this. Teaching means every day we have to think new skills. How we can teach one when a child is very poor in studies or whether he is gifted to tackle the children. So I feel it is one of the challenging job comparing to any other job. Then about Sarvapalli Radhakrishnan, he was a great scholar and he was second vice president of India. So once he was asked by his students, sir, can you celebrate your birthday? So he told, instead of celebrating my birthday, so let me dedicate this my birthday as Teachers Day. So from 5th September 1962, we are celebrating as a Sarvapalli Radhakrishnan birthday as Teachers Day. Thank you for Respected Principal Sir and dear colleagues, I wish you very happy Teachers Day. On this occasion, I would like to speak in Hindi because it is a Hindi month. So as we know, जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक ग्रुप था हमारा बच्चों का, गली के सारे लड़कियाँ लड़के मिलकर खेलते थे. तो तब मम्मी की साड़ी लेके ड्रेप करके सेम टीचर बन जाते थे और दीवारों को बोर्ड बना लेते थे, हाथ में लकड़ी और तकिए या फिर स्टोन्स को स्टूडेंट्स बना लेते थे. तो इस ऐसे खेल में ही एक दिन पता चला कि हाँ मुझे टीचर बनना है. तो टीचर बने और आई थिंक अच्छे बनना बहुत मुश्किल काम है फिर, लेकिन और सबसे ज़्यादा केवी में जॉब मिलना सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है और भगवान की दया से इतना अच्छा पोजीशन टीचर बन के केवी में आना बहुत ही ग्रेट थिंग है आई फील. सो वी शुड रेस्पेक्ट दिस प्रोफेशन, वी शुड रेस्पेक्ट क्या कहते हैं संगठन का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि हमें सेलेक्ट किया. So there are thousands and lakhs of candidates who applied for this post and many of them did not get and we got. So it is a matter of proud feeling and since we have got it, I think we have to do some justice for it and we are trying our level best and with the able guidance of higher authorities and principal sir and whoever are higher than us, they are guiding us and I hope every one of us should cooperatively work. टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, खासकर केवी में काम करना है तो आई फील टीम वर्क बहुत ज़रूरी है और हम केवी चिकमगलूर के सारे टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव. आगे भी शायद हर काम के लिए कोऑपरेशन ज़रूरी है एंड अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसके लिए भी I am not a computer savvy, so but techno savvy. So many of you are there who are. अभी हम बच्चों से भी सीख सकते हैं. They are also our teachers. Many things I learn from my daughter operating the mobile. Many things I am learning from the teachers here. Though they are younger brothers and sisters, they are teaching us. So I am very thankful to all of you. I am thankful to principal sir and my colleagues, my dear little brothers and sisters here. Thank you for your kind cooperation and on this very day I assure our principal sir and you also that I'll give my best sincere to my students. Thanks. मैं आज
टीचर्स डे के दिन मैं आपको विश करता हूँ। आपको टीचर्स डे की शुभकामनाएं। आज मैं इस अवसर पर एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा टीचर्स मेक अ मैन परफेक्ट। यह सिर्फ 4 शब्द नहीं है। टीचर्स मेक अ मैन परफेक्ट मीन्स हम वो हैं जो इंसान को बना रहे हैं। इसलिए हमें बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो आगे जाके दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। जैसे कि आपने देखा, अभी मैं इंडक्शन प्रोग्राम से आया था, श्यामला में मुझे मिला था। आज वो नेशनल अवार्ड ले रही हैं, ले लिया होगा, उन्होंने हासिल कर लिया होगा, तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब उस मुकाम पर पहुँचूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, दैट्स माय थ्योरी। तो मुझे इसके लिए परफेक्ट होना होगा। मुझे दिन रात एक करना होगा, पढ़ना होगा, बच्चों के लिए पढ़ना होगा और बच्चों को भी सिखाना होगा। धन्यवाद, थैंक यू। ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನನ್ನ ಏನು ಈ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು KVಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ KVಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಲಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ KV, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ बोलना चाहता हूँ। और सबसे पहले इस मंच पे खड़े होके मैं अपनी माँ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली टीचर नहीं बनना चाहता। ये एक्चुअली गेट बाई चांस कह लो, या फिर जो सबसे निकम्मे बच्चे जो होते हैं, जो टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं, उनके लिए टीचर्स कभी कभार ये बोलते हैं, जा बेटा तू है ना एक दिन टीचर ही बनेगा। तो ये आप उसका परिणाम कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे फील्ड ट्राई किए। मेरे ख्याल से मैंने शायद ही कोई फील्ड छोड़ा होगा जिसमें मैंने अपना कुछ ना कुछ योगदान देने का प्रयास ना किया हो। मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, और फिर बाद में कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क स्टार्ट करूं, मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं, और अपनी खुद की शॉप तो मैं चला ही रहा था। इलेक्ट्रीशियन बन जाऊं, प्लम्बर बन जाऊं, हर फील्ड में मैंने अपना हाथ आजमाया। हालांकि थोड़ा थोड़ा मुझे मिला, सब कहीं से थोड़ा थोड़ा बटोर के लेके आया। पहले इंजीनियरिंग कर रहा था तो ज़्यादा खास मज़ा नहीं आ रहा था। फिर बीटेक में एडमिशन लिया, वहाँ भी कुछ खास मज़ा नहीं आया। फिर मम्मी बोली बेटा ऐसा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आखिर में अंत में क्या हुआ कि डिसीजन ये हुआ कि बेटा अब आप 2 साल सिर्फ मेरे कहने पे एक टीचिंग जॉब ट्राई करो। और मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया था कि हाँ चलो आपके लिए, बोली कि मेरे लिए सिर्फ 2 साल नहीं दे सकता है। मैंने बोला दे, सारी जिंदगी दे सकते हैं, 2 साल क्या चीज़ है। तो 2 साल में सिर्फ ट्राई करने गया था। तो अपने लाइफ में कुछ अच्छे अनुभवी और दिग्गज शिक्षकों का साक्षात्कार हुआ। उससे एक्चुअली मुझे एजुकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो ज़्यादा वैल्यू भी नहीं था। क्योंकि हमारे गांव में जो DED कोर्स होता है उसको JBT कहते हैं, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग।
और वहाँ पे कुछ अलग ही उसकी वो मिलती है, उसको कहते हैं जोटा बुग्गी ट्रेनिंग। बुल कार्ट, बैलगाड़ी की ट्रेनिंग, बुलो कार्ट कहते हैं। और जहाँ पे फिर उसी दौरान वो 3 इडियट मूवी आई थी, जिसमें मेरे ऊपर वो डायलॉग सबसे फेमस सेट हो रहा था गधे वाला, कि पहले इंजीनियरिंग किया अब बैंक में जॉब कर रहा है। तो मेरे दोस्त मुझे इस तरह से टीज करते थे, चिढ़ाते थे कि अब पहले इंजीनियरिंग किया, बीटेक में एडमिशन लिया, मार्क्स अच्छे थे, 12th तक एकेडमी काफी अच्छी रही, स्कूल में टॉपर रहता था, एक्चुअली घर का स्कूल था। तो चाचा लोग इसलिए चाचा लोग क्या करते थे, सबको छोड़ के मुझे ही धोते थे। तो उनकी धुलाई कहीं ना कहीं शायद आज काम आ रही है। और मैं ही वो था जो सबसे ज्यादा फटकार खाता था, और वो फटकार खाते खाते जब टीचर मेरे से परेशान हो जाते थे, बोलते जा बेटा इधर टीचर ही बनेगा, तो वो आखिर में मम्मी के मुंह से निकले वो शब्द मुझे टीचर तक लेकर आए। हालांकि जेबीटी की ट्रेनिंग करते करते मुझे कुछ खास मिला नहीं था। फिर वहाँ पे कुछ अनुभवी टीचर थे जिनसे एजुकेशन से अलग कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मिला। एक मैम थी मेरी सुनीता खासा, उनका नाम मैं बताना चाहूँ, सुनीता खासा, और एक कृष्ण लाल जी, बड़े ही फैंटास्टिक आदमी थे, एकदम कूल काम, हमेशा एकदम फैंटास्टिक रहना, हमेशा शांत, कभी बॉदरिंग नहीं, कभी हरी में, कभी जल्दबाजी में नहीं। तो वो कहते थे एक टीचर शुड नॉट बी अड़ियल एंड सड़ियल, एक टीचर को कभी भी बद्दा नहीं दिखना चाहिए और उसको कभी भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कहते थे कि एक टीचर को हमेशा जो सीखना चाहता है, वो एक्चुअली में एक शिक्षार्थी होता है, एक विद्यार्थी होता है, उसको हमेशा एक्सेप्टेंस अपने मन में रखनी चाहिए। अगर वो जिंदगी में कुछ सीखना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो अगर एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं है तो वो कुछ नहीं बन पाएगा। यानी कि आप सही हो सकते हो, किसी बात पे अगर आर्ग्यू चल रहा हो तो आप सही हो सकते हो, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है उस बात को मुझे लगता है सुनना चाहिए पेशेंस के साथ, फिर बाद में अपनी बात को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वही है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड में कुछ न्यू आइडियाज हम फॉलो करते हैं। उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि पुराने में कुछ नए का समावेश। और कोविड-19 के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान हमें ये मौका बहुत बढ़िया मिला। हम ट्रेडिशनल मेथड में चल रहे थे, लेक्चर मेथड, डस्टर मेथड, चौक डस्टर वो चल रहा था। हालांकि कुछ नई एक्टिविटीज भी सीख रहे थे, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग ये हमारे लिए एक नया चैलेंज था। तो पुराने में हमने नए का समावेश करके एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल पेश किया है। और दूसरा, हमें सोसाइटी में कहते हैं रोल मॉडल, द नेशन बिल्डर, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो लेग बिहाइंड कर जाते हैं वो जाके लेबर बनते हैं, थोड़ा और ऊपर वाले बन जाते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स बन जाते हैं। यानी कि पूरे जो समाज की कोई अगर बिल्डिंग के जैसे हम देखें तो वी आर द नेशन बिल्डर्स। हम लोग बेसमेंट बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, और ये आइडिया मुझे मिला क्योंकि आजकल मेरे घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसलिए बिल्डिंग का आइडिया थोड़ा ज़्यादा चलता है। और दूसरा ये था कि शिक्षक की महिमा बताते हुए हमारे गांव में एक शब्द है, गांव में उसको शब्द ही कहते हैं, तो वो थोड़ा सुनाना चाहूंगा कि इंसान जो खुद से करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो, जब तक गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर, महिमा आपके ऊपर ना बरसे, तो मुझे लगता है कि आप उस काम में 100% या परफेक्ट हो पाओगे। वैसे परफेक्ट नाम की चीज इंडिया में या क्या वर्ल्ड में कुछ नहीं है, साइकोलॉजी में 100% जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो इसमें एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, करता करे न कर सके, गुरु किए सब होय, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। तो इसमें बताया गया कि पूरे अगर वर्ल्ड को, पूरे संसार को अगर हम 9 खंड मानते हैं कि इस 9 खंड में शिक्षक से बड़ी महिमा किसी के नहीं है, उससे ऊपर का दर्जा किसी को नहीं मिल सकता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके
I wish a very happy Teachers' Day to all of you. And I salute to all my teachers, those who have shown me the right path to live my life. And there is a sloka in Sanskrit, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Yes, teacher is a creator, teacher is observer, and he can also act like he is a destroyer also. And earlier India was known as Vedabhumi, Guru Bhumi, Devabhumi, but somehow the importance, the respect of the teacher, it is diluted, and it will regain its previous pride, there is no doubt. And really, as a teacher, I am enjoying my job, and I would enjoy in my future also. Thank you. ये साथियों, मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के बीच में एक नॉन टीचिंग एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं आगे इसी तरह सीखता रहूँगा और आगे। सर जस्ट 20 सेकेंड सर। पदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणसहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, आंख, नाक, कान इत्यादि, इसी तरह अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं होगी तो शरीर किसी काम का नहीं। इसी तरह हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय की आत्मा प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकों को नमन करता हूं और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक के लिए कहा है गुरुत्वस्तंगारस्तु अंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते अंधकारक निरोधत्वात् गुरु इत्य विधीयते। मतलब गु शब्द है, गुरु में गु शब्द और रू शब्द, दो शब्दों के संयोजन से बना है गुरु। तो गु में है जो अंधकार और रू मतलब तेज। अंधकार मतलब हमारे अंदर, अंधकार मतलब अज्ञान है, उस अज्ञान को ज्ञान रूपी प्रकाश से जो प्रज्वलित करता है या उद्दीप्त करता है उसे शिक्षक कहते हैं। फिर राधा कृष्णन जी फिलोसफर थे, उनका एक अच्छा सा एक वाक्य मुझे याद है आज भी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। शिक्षा है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। राधा कृष्णन जी ने कहा था जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तभी हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होंगे वो अच्छे अच्छे विचार होंगे, सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। फिर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं जे.बी. वाटसन, इनका नाम आपने सुना ही होगा। तो जे.बी. वाटसन जी क्या बोलते हैं, आप मुझे एक बच्चा दो, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, मैं उसे डाकू, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि आतंकवादी भी बना सकता हूँ। ये किसके अंदर सामर्थ्य है? सिर्फ एक शिक्षक के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है। वो तो एक जैसे कुम्हार बनाता है, घड़े का निर्माण करता है, कुम्हार जो होता है पिक्चर का कैसा बनाता हो घड़ा, वैसी शिक्षक के अंदर ठोक 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 के उसका निर्माण करता हो एक अच्छा सा घड़ा बन सके। शिक्षक तो है जो कि समुद्र में, अगर समुद्र है कहीं तो समुद्र में एक द्वीप के समान है और मरुस्थल में एक वृक्ष के समान है और हिमखंड है कहीं बर्फ जमी है तो वहां पे एक आग के समान है, वही शिक्षक है। साथ ही में हम शिक्षक में देखें तो 3 शब्द हैं शिक्षक। शिक्षक मतलब शील क्षमा गुणा इत्येषां त्रयाणां गुणानां वर्णानां समाहारा इति शिक्षका। मतलब शील है जो क्षमावान है और कला से युक्त है, उसको बोलते हैं शिक्षक। फिर दूसरे शिक्षक को कहें तो शिक्षक मतलब शिखर। छा मतलब छा का अर्थ देखिए हम तो क्षमा करने वाला और का मतलब कमजोरियां दूर करने वाला। अर्थात जो बालक की कमजोरियों को दूर करके अपने अंदर क्षमा की भावना रखते हुए, उसके अंदर क्षमा की भावना भी होती है और श्री मतलब शिखर तक उन्हें सफलता तक पहुंचाता है, वही एक शिक्षक कहलाता है। और शिक्षक वास्तव में कहें तो शिक्षक वह है जैसे एक सड़क और शिक्षक समान ही। सड़क देखेंगे आप, जहां पर है वहां पर स्त्री है, शिक्षक भी वैसे ही जहां पर है वहां पर स्थिर है, परंतु जो दूसरे होते उनको मंजिल तक पहुंचाने का काम एक शिक्षक ही कर सकता है और किसी के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है।
बाकी आज शिक्षक दिवस के ऊपर मेरे को सिर्फ 2 मिनट का कहने के लिए कहा था, परंतु हाँ, अब शिक्षक की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में सबसे पहले 24,000 चौपाइयां लिखी है। तो 24,000 चौपाइयों में देखिएगा सबसे पहले गुरु की वंदना की है। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, गुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पे गुरु की वंदना कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने वर्णानाम अर्थ संगानाम ऐसे भगवान गणेश और भवानी शंकर की वंदना की है, क्योंकि गुरु ने उन्हें कुछ ज्ञान दिया। उसी ज्ञान के कारण ही वह इतना बड़ा रामचरित मानस संस्कृत अनुवाद है अवधी भाषा में लिखने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार कबीरदास जी की एक उक्ति है, प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देखिए गुरु और गोविंद दो हैं, परंतु कबीरदास जी के मन में क्या आया, पहले मैं गुरु को ही नमस्कार करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचाने का एक अच्छा मार्ग मेरे सामने प्रशस्त किया है। इसीलिए गुरु श्रेष्ठ है, इसीलिए गुरु को मुझे नमस्कार करना चाहिए। और फिर एक बात की बात है, रूसो या हम आजकल की बात कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, परंतु हम बोलते हैं, बच्चों को बता देते हैं गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, परंतु हम बच्चों को उस प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जोड़ पा रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में जो कि अभाव था उस समय, प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब गाय दूध देती है, कैसी व्यवस्था। देखिए जो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, उनकी 20-20 मंजिल की अट्टालिकाएं मतलब ये फ्लैट्स होते हैं। अब 20वें फ्लोर से फ्लैट से एक बच्चा होता है अपनी मम्मी को कि गाय को क्या ये दूध कौन देता है, तो मम्मी ने बता दिया साधारण से वाक्य में गाय दूध देती है। अब उसने अपने बच्चे को ये दिखाया नहीं कि भैया गाय दूध देती, गाय के स्वरूप का वर्णन नहीं कराया उसको, सिर्फ ये बता दिया गाय दूध देती है। अब दूध वाला आता है, दूध देके चला जाता है, दूध वाला आके दूध चले जाता है। अब उसके मन में एक ही धारणा बस गई, बच्चे के मन में, कि गाय दूध देती है। और उसने गाय तो दिखाई नहीं उसकी मम्मी ने, वो दूध वाले को बच्चा ने समझ गया। अगले दिन रोड में देखा, मम्मी गाय दूध देती है। तो इसलिए यहीं पर शिक्षक की जरूरत होती है, उसको शिक्षक ही ज्ञान दे सकता है, बच्चे ये गाय है, गाय दूध देती है। जो हमारे घर में दूध लाता है वो दूध वाला होता है, वो दूध विक्रेता है। इसलिए और एक चीज उसने कही है, प्लेटो महान दार्शनिक हुए, प्लेटो जी ने कहा था कि बच्चे का मस्तिष्क होता है पूरी स्लेट के समान होता है, स्लेट मतलब कागज के समान है। उसमें तो एक शिक्षक को अंकित करने अपने अक्षर, वो कैसे अक्षर उसमें अंकित कर सकता है, वो इस शिक्षक का ही काम है। वह शिक्षक उसमें जैसा लिखना चाहिए उसके हिसाब से वह देश का, समाज का और विश्व का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकता है। इसीलिए ज्यादा न कहते हो अपनी वाणी को यही ले विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी के लिए, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Good morning everybody. Good afternoon also. Most respected teachers, wish you happy Teachers' Day. We are celebrating, entire country is celebrating Teachers' Day today on the birthday of the great person, Bharat Ratna, our Vice President and also President of India. He was a great philosopher. He was professor in Mysore University also. Some years he was in Mysore. His birthday, we are celebrating. He was a great teacher. To remember his birthday, we are celebrating Teachers' Day. On this day, I thought I will write an article. The days I started and I wrote an article and I requested one person to publish in newspaper, local newspaper. I thanks to Kala Madam, whenever she typewriter again. There I simple things only I told. What is the Guru Veda? We remember our
teachers today who taught us, our mother, father, first guru. In Kannada they say, Taye Modala Guru, Mane Modala Pathasala. Girl, house is the first school and mother is the first teacher. We remember them. And then we come to school, we have primary teachers, high school teachers, college professors, lecturers. Just we remember that is Guru Dakshina. That is our Guru Dakshina to them. It is selfless job, somebody told that, correct. We give, only we give, we don't take her, we give. Whatever is there, we give them. That is Guru. Shikshaka, in Kannada he also explained Kannada. Shikshisi Kshamisu Mane Guru. So somebody, the children, if they do mistakes, we'll punish them, then we'll teach them. That is the quality of a teacher. So we remember that is Guru Dakshina. That was same thing I have written an article also. But nowadays it's very challenging. When I joined in 1984 as a teacher, it was not like that. Children used to, whatever message used to learn, they used to listen. Because whatever the things they will learn from speeches, now not like that. What of media, just know Vatsa, Ramchandra Vatsa told them, what of development, everything they'll get. Anovadraha Tato into Vishwadano, it is. Every corner the knowledge comes, children gets and they come to school. Teaching now, in this now situation, is very difficult, challenging. But every teacher, he has taken the challenge and we are teaching them. That is really, it is not a job of like anything, if factory में जो काम करते हैं or those who are working in the IT field, that is different. But Madam told that they are living with the machines, but we are not the living things there. We are making them. We are making them. We are making इसको हमको समाज सुधारक बनते क्योंकि bad society or a good society depend on the teacher. I remember exact 5 years back on this day I was in Rashtrapati Bhavan. When I received the national award, the previous day we visited to Prime Minister's house also. We had lunch with the Prime Minister. After that he told in the meeting, see, the teacher job never, don't think that you are retired. You are not a retired. Every day is a new life for you. Every day is a new life for you. And don't say in the class, I have kept in notes. After seeing my notes, I will tell you. ऐसा मत बच्चों के सामने मत बताओ. हाँ भी एक ज्ञान निधि भंडार है. This is said by our Honorable Prime Minister. So, I born in a small village and went up to the Rashtrapati Bhavan because of this teachers. If such an ordinary employee means I cannot go to the Rashtrapati Bhavan and I cannot go to the Prime Minister's house. So, because of this teacher post, how I joined this teacher post also, my father was a poor farmer. I told I will go to, I scored good marks in 10th standard. I told I will go to science. He told I don't have money. Those days only 100 rupees or 150 rupees college fees was there. He was unable to give. Then he told you go to Sanskrit college, free. Free खाना मिलता है, free है, सब मिलता है, Sanskrit college. Then I came to Bangalore and Varanna, Kannada में बोलते हैं, Varanna means each day was in the house, like Bhikshu. We went and requested, one day I will come to your house, please, हमको खाना दीजिए. ऐसा करके 7 दिन में एक घर का जाके every day one house I went and like in 5 years I studied Sanskrit because free education. But Sanskrit Mata or Saraswati Mata did not give me. Happily I say now, when I came to Bangalore in 1981, which 30th is my mother day, I had dispensary to take it. 15 rupees bus charge. So 15 rupees was there in my pocket. Now happily I say, I am the Crorepati guy. I am Crorepati, I am saying happily. Because all white people are not black people. Everything the teachership was her. The teacher, because of teachers I have taken. So father told you go.
Sanskrit will not leave us, it will affect. More than 15-20,000 students I taught in my teacher course. From 2 years more in that, some more teachers students will teach. But they should remember, yes, there was a teacher, Ajiva Sanskrit teacher. Like that, the whole life they will remember. That is Gurudakshina. I am really happy. This Chikmagalur faculty, teaching faculty is very good. All are good speakers and good teachers. Definitely this school will have a good name, it will get it, good teachers, and you are all young, trying to learn. Have more degrees, try to learn. Daily you read books. Daily read books. Because of this mobile we stopped everything. But read books. It should be habit. At least half an hour you read before going to bed. My humble request all young teachers, I want you all should get Rashtrapati Puraskar. Wherever I will be there, you say, yes sir, I got this year received a national award, that you have to inform. Yes. So I remember my mother also, even sometimes she sold her gold also, whatever it is there, for our education. They are the real gurus. We also tell the children, this once we respect the entire faculty of the Guru. But sir told them, who shabdastu andhakara, who shabdastu nivaraka. Guru means who remove the darkness of the society. Whatever is there, who is your teacher, they ask. Person, whatever he will do, who is your teacher? They ask first question, who is your teacher? ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಯಾರು ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾರು ಅಂತ. Society is thinking. Now the new education policy after 35 years, it has come at least from next year, is really good. I think the entire education system will change in India. We will also stand like America, Japan and others. The Honorable Prime Minister day and night is working for that country. He is the real Guru, scientific. He is the real Guru for country. So Guru means not only the who changed the society, he is Guru. Who changed the society, he is a Guru. Such like Samartha Ramadas, he changed the Shivaji. Paramahamsa changed Ramakrishna and Vivekananda. And Shvetaketu in Purana it comes. He was changed by his father only, father of the Guru Aruni. Like Vishwamitra changed Rama. Dronacharya changed the Pandavas. They are great gurus. So we will remember them. Then really what we are celebrating is a meaning for us. Thank you. Once again, happy Teachers Day. एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है कि अपनी वाणी से, अपने विचारों से वो सबको मोह लेता है। अभी सभी प्रिंसिपल सर ने 5 to 10 मिनट्स के नाम बोला, लेकिन सभी बिन रोक साइलेंस के साथ उसको सुन रहे थे, क्योंकि सर ने अपने एक्सपीरियंसेस को, उन्होंने जो ज्वाइन किया 1985 के बाद से और अभी तक, उसको एक साथ पिरो के हमें इस तरह से बताया कि हमें उससे कुछ सीखने को मिला और उसमें हमें इंटरेस्ट आया। तो ये सभी कहानी कहने की स्किल हमें सर से सीखनी है और हमें भी सर की जैसा बनना है कि एकदम हम भी राष्ट्रपति ओर लेके, और जब सर की एज में हम आ रहे हैं 55 के बाद तो जो कर नहीं पाएंगे, तो 55 तक कि हम भी एक दिन स्टेज पे खड़े होकर सर के जैसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए, और जो आने वाले जनरेशन है, आने वाले जो टीचर्स हैं, वो हमसे कुछ सीख पाए। तो हमें भी उस लेवल पर पहुंचना होगा, तो उसके लिए हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने पड़ेंगे। सो इन द लास्ट ऑफ दिस प्रोग्राम I want to call Lakshmi sir. He will present a cultural program, a song dedicated to teachers. ये सॉन्ग जो गाएंगे सर, ये इंडियन आइडल, आपने सभी कार्यक्रम देखा होगा, जो फर्स्ट सीजन था उसमें विनर थे, तो उसमें लास्ट के जो 2-3 पार्टिसिपेंट्स बचे थे फाइनलिस्ट, उन्होंने गाना गाया था, मैं मोहब्बतें लुटाऊंगा। तो लक्ष्मी सर ने उसको सॉन्ग में कुछ चेंज करके उन्होंने अपना 2-3 डेज उसको दिया, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा उसी ट्यून में, लेकिन उसकी वर्डिंग जो है वो टीचर्स को डेडिकेटेड है। तो लक्ष्मी सर, अगर गुरु की कृपा हो तो आप लोगों की कृपा हो तो शब्दकोश मेरा भी बढ़ेगा, तो हो सकता है मैं और अच्छा लिख सकूं। अगर कुछ त्रुटियां क्षमा पाएंगे। गीत प्रस्तुत है, वर्णी
सा पनि सा पनि सा पनि सा पनि सा रे पनि सा पनि सा पनि सा पनि सा प म प ग म रे सा रे सा रे ग म रे सा ग रे सा हे 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 ओ हो 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 हे 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 आ हा हा हे हे आ हा सभी को बुलाऊंगा शिक्षा के मंदिर आज आज ले जाएंगे इसे जाति धर्म के पार पार हम दिलाएंगे शिक्षा का हम आज दिलाएंगे ओ सभी को बुलाऊंगा शिक्षा के मंदिर आज आज ले जाएंगे इस जाति धर्म के पार पार हम दिलाएंगे शिक्षा का हक हम दिलाएंगे शिक्षा बिना ये जीवन काली अंधियारी है शिक्षा से ही है मुमकिन सारी अंधियारी है पनि सा पनि सा पनि सा पनि सा पनि सा रे पनि सा पनि सा पनि सा पनि सा पनि सा शिक्षा बिना ये जीवन काली अंधियारी है शिक्षा से है मुमकिन सारे उजियारी सभी को बताएंगे शिक्षा का आज महत्व मंत्र ये गाएंगे शिक्षा हर दुखों का अंत हम आज मंत्र ये गाएंगे हम आज मंत्र ये गाएंगे सभी को बुलाऊंगा शिक्षा के मंदिर आज आज ले जाएंगे इस जाति धर्म के पार पार हम दिलाएंगे शिक्षा का हम आज दिलाएंगे